जब दुनिया पर संकट आता है तो दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखती है, क्योंकि दुनिया को पीएम मोदी से सिर्फ आस नहीं बल्कि उन पर विश्वास भी है। उत्तर दक्षिण या पूरब पश्चिम, मोदी की कूटनीति ऐसी है कि उनकी बात कोई टाल नहीं पाया है और ये बात अब वर्ल्ड लीडर भी मानने से नहीं हिचकिचाते। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने पुतिन को परमाणु हथियारों के उपयोग से रोका। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत की भागीदारी के लिए बहुत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की वार्सा यात्रा हमारे लिए बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को परमाणु सामरिक हथियारों का इस्तेमाल न करने के लिए राजी किया। Prime Minister Modi has always said that he is on the side of peace. In fact, he traveled to Poland, he traveled to Austria, he also traveled to Ukraine. Perhaps, the perspectives were exchanged on the ongoing conflict. In fact, Prime Minister Modi did a podcast interview also with Lex Friedman. In fact, he said that he is the one who told President Putin that this is not an era of war. Then he also sends message for President Zelensky that solutions cannot be found on the battlefield, irrespective, regardless of who is supporting you. How do you look at Prime Minister Modi's role as far as this conflict is concerned? Perhaps India's role has always been very positive. India has always spoken about dialogue and diplomacy, solution through dialogue and diplomacy. How do you, your government, look at India's role? We are very grateful for India's involvement. We are very happy that Prime Minister Modi is doing that. We had a fantastic visit of Prime Minister last year. We signed a comprehensive strategic agreement. We signed an action plan to implement it. We appreciate the fact that Prime Minister Modi, at the early stages of the war, did persuade Mr. Putin not to try to use tactical nuclear weapons. He made a call to President Putin. And we also want peace. Nobody wants war. But we want peace that would be secure and stable. We don't want peace that would be a temporary ceasefire, which results in 3 years later in a major war. Okay. So we support peace efforts that will secure stable and sustainable peace in Ukraine. And we are very grateful to Prime Minister Modi for his involvement. His visit was a phenomenal success. And the first in 45 years a Prime Minister of India came to Poland. We were very happy that he is involved because he has a mollifying influence over Putin. बात सिर्फ पोलैंड तक ही नहीं, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर अब यूक्रेन के एक सांसद का बड़ा बयान आया है। यूक्रेन के एक सांसद का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शांति के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अहम रोल है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार शांति के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। Prime Minister Modi spoke to Lex Friedman. In fact, he again stated India's position, and he said that India is not neutral. India is on the side of peace. He said that he told President Putin that this is not an era of war. At the same time, his message for President Zelensky is, regardless who supports you, a solution cannot be found on the battlefield. How do you look at this approach of Prime Minister Modi? Also, given that Prime Minister Modi did speak to President Putin in 2022 and did tell him not to try to use tactical nuclear weapon, and perhaps that did help at that point in time. Nobody wants peace more than Ukrainians. Okay. That's why for the 8 years before the war, full-scale invasion started, we had negotiations with Russia time and time again. For that, we had a full-scale invasion. For our point is very simple. Whatever peace or ceasefire comes about, we need to have more than a piece of paper to show to the Russians that they reinvade. Because we gave up the third biggest nuclear arsenal in the world for guarantees of independence, integrity, and sovereignty by US, Russia, Britain, China, and France. For that, we had 20% of the territory occupied. So when we're discussing this situation, we need more than just papers to throw at Putin's armies when they reinvade. इसके पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा था कि वो यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं। ज़ेलेंस्की, हम लंबे समय से एक बात सुनते हैं कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होगा, लेकिन जब आज मैं उन
बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भर आया था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने भी उनसे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में सवाल किया था। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा था कि मेरे रूस के साथ घनिष्ठ संबंध है और यूक्रेन के साथ मेरे घनिष्ठ संबंध है। मैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकर कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है, और मैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मित्रवत तरीके से कहता हूं कि भाई, दुनिया कितनी भी आपके साथ क्यों न खड़ी हो जाए, युद्ध के मैदान में कभी समाधान नहीं निकलेगा। समाधान तभी निकलेगा जब यूक्रेन और रूस दोनों बातचीत की टेबल पर आएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूट्रल नहीं हूं, मेरा एक पक्ष है शांति का। कि वो मॉस्को भी जा सके, प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात कर सके, और यूक्रेन भी जा सके और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी बैठ सके। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम नेता हैं, और दुनिया की अपेक्षा है कि चलिए कम से कम एक भारत तो है विच हैज दिस एबिलिटी, एंड आफ्टर 3 years, after 3 years, people feel that look, किसी न किसी को कुछ तो करना होगा, ये युद्ध कितने साल के लिए चले, तो दैट फीलिंग इज ग्रोइंग। बट उसके अलावा दुनिया में विकासशील देश हैं हु ऑल्सो लुक टू अस, जो याद करते हैं कि कोविड के समय में वैक्सीन किसने दिया, जिनको अभी भी पता है कि जब यूक्रेन का विषय उठा, कम से कम भारत, एटलीस्ट वी स्टूड अप एंड वी स्पोक, एंड व्हेन वी स्पोक मेनी अदर कंट्रीज केम टू अस एंड सेड, हम कहना तो चाहते थे, कह नहीं पाए, बट एटलीस्ट यू स्पोक। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने ही खुलकर कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। पीएम मोदी के इस बयान की अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने जमकर सराहना भी की थी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में एक ऐसा दौर आ गया था जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हमले के खतरे से अमेरिका दहशत में आ गया था। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के आखिरी दिनों में अमेरिका को ये डर सताने लगा था कि रूस एक रणनीतिक परमाणु हथियार से यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी पुरजोर तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो ये हिरोशिमा और नागासाकी के बाद पहली बार होगा जब किसी युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाता है। इस महासंकट के बीच अमेरिका ने पीएम मोदी समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं से मदद मांगी ताकि हमले को रोका जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी समेत दुनिया के अन्य नेताओं ने इस रूसी परमाणु हमले को रोकने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए माना जाता है कि पीएम मोदी के पास वो स्ट्रेटेजी और फ्यूचर प्लान है जिसके दम पर वो आज भी वर्ल्ड लीडर है और भविष्य भी वर्ल्ड लीडर रहने वाले हैं।